Hare Krishna. Am I audible? Yeah. Okay. We'll start with the Mangala Charana. Yes. Yes, thank you. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं साग्ररत्नातान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधाकृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्विताश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तु ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय सुरभ्ये नमः। मुखं करोति वाचां भङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। Thank you for joining today for Sunday evening program. We'll start with the verse, then we'll see what we can discuss to please Lord. Today's verse is very important. Obviously, all the verses in Bhagavad Gita is important, including the first verse, even though it is spoken by Sanjay Dhritarashtra. Yeah, Dhritarashtra. Okay, so we'll start. You can repeat after me. Yogastha kuru karmani संघं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते भोगस्थः कुरु कर्माणि सङ्घं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योगमुच्यते योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्घं त्यक्त्वा धनञ्जय
सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योगमुच्यते. So someone, Mathadesh and Prabhu. Okay, please, Prabhu. योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय. समत्वं योगमुच्यते. Mataji. योगस्थः कुरु कर्माणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय. सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा मुच्यते. समत्वं योगमुच्यते. Thank you. Translation and purport by His Divine Grace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki Jai. Translation: perform your duty equipost, O Arjuna, abandoning all attachment to success or failure. Such equanimity is called yoga. Purport: Krishna tells Arjuna that he should act in yoga. And what is that yoga? Yoga means to concentrate the mind upon the Supreme by controlling the ever disturbing senses. And who is the Supreme? The Supreme is the Lord. And because he himself is telling Arjuna to fight, Arjuna has nothing to do with the result of the fight. Gain or victory are Krishna's concern. Arjuna is simply advised to act according to the dictation of Krishna. The following of Krishna's dictation is real yoga, and this is practiced in the process called Krishna consciousness. By Krishna consciousness only can one give up the sense of proprietorship. One has to become the servant of Krishna or the servant of Krishna. That is the right way to discharge duty in Krishna consciousness, which alone can help one to act in yoga. Arjuna is a Kshatriya, and as such he is participating in the Varnashrama Dharma institution. It is said in the Vishnu Purana that in the Varnashrama Dharma, the whole aim is to satisfy Vishnu. No one should satisfy himself, as is the rule in the material world. But one should satisfy Krishna. So, unless one satisfies Krishna, one cannot correctly observe the principles of Varnashrama Dharma. Indirectly, Arjuna was advised to act as Krishna told him. Srila Prabhupada ki Jai. Okay, we have read the translation and purport of Srila Prabhupada. All of you are coming regularly. I have seen all of your face. So you know much more details now. So we'll start with very basic to understand Hindi. I'll parallelly talk in little Hindi. Please forgive me for any literal errors. त्रुटि थोड़ा थोड़ा ना बहुत त्रुटि होगा हिंदी में, क्षमा कीजिए. आप करेक्शन कर सकते हैं हिंदी में. ठीक है. सो विल स्टार्ट विद द बेसिक. शुरू से स्टार्ट करेंगे. मैं प्रश्न पूछूंगा, आप उत्तर दे सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं. ठीक है. हम तो क्लास में है, क्लास भगवत गीता के बारे में है. नाम तो भगवत गीता है, क्या है उसका अर्थ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भगवत गीता? स्पोकन बाय कृष्णा. ओके. देन सॉन्ग ऑफ गॉड. ओके, वेरी नाइस. भगवान सॉन्ग गाना.
ओके, गीत, भगवान का गीत है भगवत गीता। ओके, ठीक है, वेरी नाइस। भगवद, भगवद मीन्स कृष्ण, नो अदर देन एनीवन एल्स। भगवद मतलब कृष्ण ही है, उसको पहले हम मन में रखना है। भगवत मतलब कोई अलग नहीं है, कृष्ण ही है। हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दिस? भगवत क्या है मीनिंग? भगवत मतलब भगवत शब्द का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है? भगवान है, सही है। वन हु पोसेस ऑल ओपुलेंस। ओके, शास्त्र में लिखा है, पराशर मुनि, मुनि पराशर मुनि बोले हैं, किसको सब जो ऑपुलेंस है, सबको सब पोसेस करते हैं, उनको बोलते हैं भगवान। हम सब भगवान नहीं है, इसलिए वो जो श्लोक है उसका प्रॉपरली वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर श्लोक, समझने के लिए कोशिश करेंगे। सो पराशर मुनि व्यासदेव जी का पिता है, पिताश्री है व्यासदेव जी का। सो पराशरी मुनि बोलते हैं, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षडम इति भगगणाः। सिक्स ऑपुलेंस है, सिक्स, सिक्स ऑपुलेंस, ऑपुलेंस को क्या बोलते हैं? ऐश्वर्य। ये छह चीज है, सिर्फ भगवान के लिए गुण है, किसी और को नहीं। क्या है ये छह? छह लोग। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य मतलब वेल्थ, सब कुछ उनका ही है, उनको क्या प्रोसेस लेना है, उनका ही है सब कुछ, हम भी उनका है। ओके, ओनर ऑफ एवरीथिंग, लक्ष्मी देवी जी का ओनर है। Okay? ऐश्वर्य से समग्र से, एक्चुअली समग्र से मतलब क्या है? एक नहीं है, सब कुछ का। समग्र मतलब फुल। वीर्य, वीर्य मतलब शक्ति, पोटेंसी, एनर्जी, पूरा दम है भगवान के लिए। भगवान का दम से हम चल रहे हैं, बल्कि हम सोच रहे हैं मेरा दम से मैं चल रहा हूँ, वैसे सोच रहे हैं। एनर्जी, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यश्च यशसः, यशसः मतलब यश, सक्सेस, फेम, नेम, फेम, etc. सक्सेस, ओके, फेमस, वेरी फेमस। लॉर्ड कृष्ण इज वेरी फेमस। यशसः श्रियः, श्रिय मीन्स श्री, लक्ष्मी है, लक्ष्मी तो पहले हुआ है अभी। ऐश्वर्य मतलब लक्ष्मी है। इधर श्री मतलब सौंदर्यता, ब्यूटी, लाइक Krishna, no one is beautiful like him. That is why the meaning of Krishna is so beautiful and very attractive, so much attractive. सौंदर्यता, ऐश्वर्यस्य समग्रश्च वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञान, ज्ञान नॉलेज, सिंपल हिंदी में ही है ज्ञान। विज्ञान, विज्ञान मतलब हाँ, इंपॉर्टेंट है ज्ञान, और विज्ञान को आप मन में रखिएगा, फर्दर आपको चाहिए। हम सबको ज्ञान मिला है भगवत गीता से। अभी दूसरे चैप्टर मतलब सेकंड चैप्टर के पीछे थोड़ा, क्या ज्ञान मिला है? हम शरीर नहीं है, वैसे ज्ञान मिला है, वो तो ज्ञान है। एप्लीकेशन कैसे करेंगे, वही आज का श्लोक है। एप्लीकेशन कैसे करेंगे? अभी जो हम शरीर नहीं है हम सोच रहे हैं, बुकिश नॉलेज है। बुकिश मतलब क्या है? ज्ञान मिला है, किताबी है, बल्कि एप्लीकेशन कैसा है? हम रेगुलर लाइफ में कैसे अप्लाई करेंगे? एक मार पड़ा, हम बॉडी नहीं है बोल सकते हैं? नहीं, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बीमार पड़ा वो नहीं बोल सकते। इसलिए भगवान का जो गीत है उसको भगवत गीता, भगवान का गीता मतलब क्या है? गाना, भगवान गा रहे हैं, किसके बारे में गा रहे हैं? किसके गा रहे हैं? नहीं, सिर्फ आत्मा के बारे में नहीं, किसके बारे में गा रहे हैं? भगवान के बारे में गा रहे हैं, मतलब हम सब भगवान के हैं, प्रकृति भी भगवान का है, सब कुछ भगवान के। इसलिए पांच चीज भगवत गीता में मतलब मेन फोकस किया है, पांच चीज याद है आपको? सब पांच चीज, फाइव थिंग्स आर एक्सप्लेन्ड इन द भगवत गीता। कृष्ण टॉक्स इन मेकिंग बेस ऑफ दिस। पहले भगवान ही है, उनके बारे में बोल रहे हैं, पुरुष है,
ठीक है। हाँ, थैंक यू। सो भगवान मतलब पुरुष, भगवान के बारे में भगवान बोल रहे हैं, बहुत कुछ बोल रहे हैं। और नहीं, हम लोग परा हम जीव, हम के बारे में बोल रहे हैं, हमारे बारे में गीत कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं भगवान, कैसे जीना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दैट्स व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट, ही इज ग्लोरीफाइंग इवन जीवस आल्सो, not only jiva, all his manifestation he is glorifying in Bhagavad Gita. That's why it's a supreme glorification. Lord himself is glorifying about him and all others. प्रकृति है पुरुष, ओके, देन काल, काल और प्रकृति मतलब नेचर, प्रकृति, समझ रहे हैं ना। और एक चीज है कर्म, उसके बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। ज्ञान विज्ञान बोला है अभी, और कर्म याद रखेंगे, ठीक है। कर्म, कर्म का सब्जेक्ट मैटर है अभी। इसमें जो चार चीज है आध्यात्मिक है, नित्य है वो, बल्कि कर्म आध्यात्मिक नहीं है। इसको आध्यात्मिक बनने के लिए, करने के लिए कैसे करना है, वही आज का टॉपिक है, ठीक है। भगवत गीता समझ गए ना, भगवत गीता पहला चैप्टर का नाम है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद कर रहे हैं, क्यों विषाद कर रहे हैं, क्यों विषाद कर रहे हैं, विषाद मतलब दुख कर रहे हैं, क्यों लैमेंट कर रहे हैं, हाँ, जो क्षत्रिय का धर्म जो है युद्ध करना। और क्यों युद्ध करना है, पहला वाला जो श्लोक है कर्मण्येव अधिकारस्ति, आप अटेंड किया है आपने, उसमें विकर्म नाम के एक वर्ड आया है, आपने सुना है, विकर्म नाम के। दुर्योधन आदि जो लोग हैं विकर्म विकर्म करते हैं, करते थे। क्या विकर्म किया है उन्होंने, बहुत पाप कर्म किया है। हाँ, कुंती महारानी बोलते हैं क्या क्या किया है उन्होंने, भागवतम में बोलते हैं क्या क्या किया है। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात्, महत सभायाम, ऐसे बहुत कुछ, छह छह मेन एग्रेसर्स बोलते हैं, एग्रेसर्स, वो सब किया है उन्होंने। सो विकर्म किया है। सो स्पेसिफिकली इधर क्या देखना है, जो कर्म बोलते हैं, वो जो श्लोक है उससे समझेंगे पहले, उसके बाद नेक्स्ट श्लोक के लिए जाएंगे, आज का श्लोक के लिए जाएंगे। सो भगवत गीता आप समझ गए, और पहला चैप्टर अर्जुन विषाद योग है, उसमें हाँ, supposedly he is supposed to fight, but because of me and mine, मेरा और मेरा शरीर, मेरा फ्रेंड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा सोच के युद्ध नहीं कर रहे। अभी जो चैप्टर में भगवान भगवान बोल रहे हैं कर्म करना है, कर्म से बाहर नहीं जाना है। कर्मणि एव अधिकारः ते, ते मतलब क्या है, ते मतलब आप, ठीक है। अर्जुन, अर्जुन यू हैव अ राइट ऑन योर ड्यूटी। कर्मणि एव, एव मतलब क्या है, श्वान महाराज, नहीं श्वान महाराज इधर से आ रहे हैं। कर्मणि मतलब क्या है, कर्म में आपको अधिकार, कर्म में है। कर्मणि एव, एव मतलब क्या है, स्ट्रेस, उतना ही करना है, कोई ये अलग कुछ मत सोचना है। कर्मणि एव अधिकारः ते मा फलेषु कदाचन, कदाचन मतलब क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम है, it might be today, tomorrow, anytime, there is no अधिकार। व्हाट इज दैट, कर्मणि एव अधिकार अस्ति मा फला, फल का जो अपेक्षा कभी भी नहीं करना है, आज कल नहीं, कभी भी नहीं करना है। ये श्लोक बहुत गहरा, बहुत मुश्किल भी है। कर्मणि एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु। हम सब सोचते हैं मैंने किया है, उसका हेतु कारण मैं ही हूं, ऐसे सोच रहे हैं। ये जो ऐसे लैपटॉप बनाया, मैंने बनाया लैपटॉप, मैं ही इसका पीछे, पता है सबको भगवान ही पीछे। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं अभी हम सब इतना कर रहे हैं, बल्कि जो रॉ प्रोडक्ट्स है, क्या बोलते हैं उसको,
कच्चा 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 वस्तु जो है प्रकृति से ही मिलता है। प्रकृति प्रकृति किसका है? प्रकृति जो भगवान भगवान का ही है। भगवान का जो मैनिफेस्टेशन है प्रकृति। इसलिए कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूः। नेक्स्ट अगला जो लाइन है वेरी इंपॉर्टेंट। मा ते संगोस्तु अकर्मणि। अकर्मणि मतलब क्या है? अकर्मणि कर्म मतलब क्या है? काम करना, ठीक है, एक्टिविटी करना। उसको आ मतलब नेगेशन, ऑपोजिट। काम नहीं कर, वो गलत है बोलो। गलत, निषिद्ध निषिद्ध नहीं, किसी काम नहीं कर। कि जो बोल रहे हैं, हाँ, आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है, फिर ये शरीर के लिए किसके लिए एक्टिविटी करना है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग कर्म? अभी हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, फिर क्या? व्हाट इज द यूज ऑफ डूइंग एक्टिविटी? किसके लिए? नो यूज, राइट? If I know that I am not this body, then what is the purpose of doing all this activity? That is what Arjuna is asking. That's why here it is said, Mate sangostu akarmani. अकर्म नहीं करना है, कर्म करना है। Very, very important. These lines are very important. It's already covered, but however, we'll go ahead. So तीन तरीके का कर्म है। पहला वाला आप सबको पता है क्योंकि ये श्लोक खत्म हो गया, मतलब डिस्कशन हो गया है। कर्म, कर्म मतलब क्या है? वर्ण आश्रम आधारित वेदोक्त क्रिया। वेद में क्या कहला गया है, वर्णाश्रम जो पद्धति है उसमें क्या कहला गया है, उसके अनुसार जो क्रिया करते हैं, काम करते हैं, उसको कर्म बोलते हैं। ठीक है, शुभ। विकर्म, विकर्म का मतलब शास्त्र में और वर्णाश्रम में क्या क्या नहीं करना है बोला है, वो ही करेंगे, उसको विकर्म बोलते हैं। हम सब कर रहे हैं एक्चुअली, हम सब कर रहे हैं, इसलिए हम भी विकर्मी हैं। सोचना है, बहुत बहुत डीप है साइंस। कर्म, विकर्म, उसके बाद अकर्म। अभी बताया है अकर्म, काम नहीं करना। और स्पिरिचुअल वैल्यू है अकर्म को लिए, मतलब कर्म करेंगे, उसको भगवान को अर्पण करेंगे, उससे क्या क्या होगा? जो कर्म का इफेक्ट अकर्म होगा। समझ रहे हैं आप? दो दो तरीके का अकर्म है। एक है काम नहीं करना, दूसरा है काम करेंगे। किसके लिए करेंगे? भगवान के लिए करेंगे। उससे क्या होगा? कर्म का इफेक्ट नहीं होगा, कर्म का रिजल्ट नहीं होगा। रिजल्ट होगा मतलब भगवान के लिए। अभी जो एग्जाम्पल है, हम पका रहे हैं, कुछ पका रहे हैं, हम ही खा रहे हैं। पका के भगवान जो क्या बोल रहे हैं, क्या क्या पकाना है, वो सब पका के भगवान को अर्पण करके, चढ़ा के, भोग चढ़ा के, उसके बाद में जो प्रसादी मिलता है उसको लेंगे। उसको क्या बोलते हैं? प्रसाद बोलते हैं, क्योंकि उसमें कर्म नहीं है। वो जो एक्टिविटी है, वो सिखाने के लिए श्रील प्रभुपाद ने इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन किया है। बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है। हम क्या क्या नहीं सीख रहे हैं, हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। पूरा हमारा जो मन है, हमारा जो प्रज्ञा है, पूरा विकसित होता है। सो द पर्पस ऑफ, कुछ लोगों के लिए शायद हिंदी पता नहीं होगा इसलिए। सो द पर्पस ऑफ ISKCON is to give an opportunity for all of us to cultivate the knowledge so that we don't do karma. We do real akarma. The real akarma is doing activity for Lord, only for the purpose of Lord. By that, what happens? Result of that work will not disturb us. Will not disturb us. Okay. It is karma, akarma, vikarma. सो कर्म ही करना है, कर्म और विकर्म नहीं करना है। ठीक है, कर्म ही करना। कर्म में तीन चीज है, कर्म में तीन चीज है। व्हाट आर दे? नित्य कर्म, नित्य, नित्य मतलब क्या? डेली जो काम करना है। अभी जो क्या करते हैं, पकाना है, डेली करना है। शरीर को पोषण करना है तो पकाना ही है, नित्य कर्म है। उसके बाद नैमित्तिक कर्म, निमित्त, निमित्त क्या निमित्त है? कुछ, हाँ, पेरेंट्स, इन पेरेंट्स को
हेल्थ अच्छा नहीं है, हॉस्पिटल लेकर नैमित्तिक है, डेली नहीं करते हम, निमित्त से करते हैं। नित्य नैमित्तिक और काम्य। काम्य मतलब क्या है? कामना से करना और कुछ कामना रखे, मैं इतना करूँगा, इतना मिलना है मुझे। इच्छा, आशा, मैं इतना हम सब लोग कर रहे हैं वही। हम सब क्या कर रहे हैं? तीसरा, तीसरा नहीं करना है, वही बोल रहे हैं। पहले श्लोक में ही बोला है, हम सब क्या करते हैं? हाँ, वी वर्क, हम काम करते हैं, बल्कि इच्छा से काम करते हैं। हम कितने लोग नहीं करते हैं वैसे? बहुत कम है, ऑलमोस्ट नथिंग। इसलिए इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट व्हाट हैपेंस? एसोसिएशन से ये सब हो जाता है, हमारा मन परिवर्तन हो जाता है। धीरे 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 क्या होता है, हमारा मन में होता है। कैसे होता है वो समझेंगे। अच्छा, बहुत अच्छा श्लोक में समझे। सो कर्म में तीन तरीके का है, नित्य, नैमित्तिक और काम्य। नित्य और नैमित्तिक को स्पिरिचुअल वैल्यू है, वो बोलेंगे अभी, वो देख अंडरस्टैंड करेंगे। क्या है नित्य? शरीर नित्य है क्या? सो शरीर के लिए जो करते हैं वो नित्य कर्म नहीं है, आत्मा के लिए करते हैं वो नित्य कर्म है। कौन सा कर्म है अभी आत्मा के लिए करते हैं? सुबह जग के, सुबह जग के जब करते हैं वो आत्मा के लिए है। प्रसाद भोग चढ़ाते हैं आत्मा के लिए है। भगवत गीता पढ़ते हैं आत्मा के लिए है। वो सब चीज है, आत्मा के लिए है, इसलिए वो नित्य कर्म है। नित्य कब कभी भी नहीं छोड़ना है, कभी भी, कभी भी। फॉर एग्जाम्पल, अभी किसी का मृत्यु हो गया घर पे, फिर भी मृत्यु होगा, फिर भी नहीं छोड़ना है। सोच रहे हैं ना? भगवान का जो भक्ति है कभी भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो नित्य है। नित्य मतलब क्या है? नित्य मतलब क्या है? इटरनल, स्टॉप ही नहीं है उसका, खत्म ही नहीं है। इसलिए जो नित्य कर्म बोलते हैं, किसके लिए बोलते हैं? रेगुलर जो कृष्ण भगवान के लिए क्या क्या काम करते हैं उसको नित्य बोलते हैं। क्या काम है? 9 चीज है, मेनली 9 आइटम्स है। कौन सा आइटम है? 9। कौन सा है बताइए? हाँ, श्रवणम, अभी बताएंगे। हाँ, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। ठीक है, ये जो 9 है, नॉट ओनली दैट, भक्ति रसामृत सिंधु में और चीज है, सिर्फ 9 नहीं है, और चीज है। 64 आइटम लिखा है, वो सब मिला के क्या होता है? भगवान के लिए करते हैं, उसको प्योर भक्ति बोलते हैं। ठीक है। हाँ, प्रश्न है? हाँ, व्हेन देयर इज डेथ, क्योंकि हमारा घर पे सब लोग भक्ति नहीं करते हैं ना, कुछ लोग करते हैं, एक और दो। क्या करें? उनका प्रश्न वही है। जो हमारा घर पे किसी का मरण हुआ है, क्या करेंगे? हम भगवान को दीप चढ़ाने के लिए, भोग भोग करने के लिए नहीं छोड़ेंगे। वैसे कुछ चांसेस है, क्या करेंगे? आपको कुछ आइडिया है? मन में जप कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। वेरी गुड, जप माला लेके भी कर सकते हैं। मैंने एक स्टोरी सुना है। उधर क्या हो गया, एक माता जी थे, उनका हस्बैंड बिल्कुल वो विरुद्ध थे, कुछ भी नहीं करने के लिए छोड़ते थे, कुछ भी। ये जो माता जी क्या करते थे, बिस्तर में लेट के पूरा 16 माला जपा करते थे, बिस्तर में लेट के। और उनका जो गुरु, गुरु मतलब दीक्षा नहीं हुआ है, फिर भी वो शिक्षा गुरु बोलते हैं और प्रथम प्रदर्शक गुरु बोलते हैं, उनको अपडेट करते थे, मेरा हो गया आज, बल्कि इतना प्रॉब्लम है। सो भक्ति निरंतर है, उसका स्टॉप नहीं है, कभी भी कर सकते हैं, कभी भी करना ही है, कर सकते हैं, इसलिए उसको नित्य बोलते हैं। नैमित्तिक का मतलब क्या है? नैमित्तिक मतलब निमित्ता से। क्या है निमित्त? ये शरीर निमित्त है, ये शरीर निमित्त है। ये शरीर के लिए क्या क्या करना है उसको नैमित्तिक बोलते हैं। सो पहला है नित्य कर्म, उसको भगवत धर्म बोलते हैं, भागवत धर्म बोलते हैं। दूसरा है नैमित्तिक, उसको वर्णाश्रम धर्म बोलते हैं। जो वर्णाश्रम धर्म है,
मैं क्षत्रिय हूँ, ब्राह्मण हूँ, शूद्र हूँ, वैश्य हूँ और सन्यासी हूँ, ब्रह्मचारी हूँ, गृहस्थ हूँ एक्सेट्रा बोल के जो काम करता हूँ उसको बॉडीली लेवल शरीर मान के कर रहा हूँ मैं। क्षत्रिय मतलब क्या? शरीर के लिए वो आत्मा क्या क्षत्रिय बनता है क्या? नहीं बनता है। इसलिए ये समझना चाहिए हम। अभी आज का श्लोक जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है। इतना तो सीखे हैं अब, कर्म करना है, निष्काम कर्म करना है, सुना है। कामना से कर्म नहीं करना है, बल्कि कैसे करना है सुना है हमने। पिछले पिछले श्लोक में सुना है कैसे करना है, उसका ही अर्थ है इधर, वो देखेंगे अभी। ठीक है, थोड़ा मन लगा के कोशिश करेंगे अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि शास्त्र का जो ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हल्का फुल्का ज्ञान से क्या होता है, 2-3 दिन जप करते बाद में किसी ने बताया क्यों, जरूरत नहीं, छोड़ देते। क्योंकि हमारा शास्त्र में गहरा नॉलेज नहीं है, डीप नॉलेज नहीं है। इसलिए शास्त्र का अध्ययन अच्छे से करना है, किसी लैंग्वेज, ठीक है, हिंदी, कन्नड़, तमिल, किसी लैंग्वेज में, ठीक है, बल्कि डीप लैंग्वेज, सॉरी डीप अंडरस्टैंडिंग करने के लिए कोशिश करना है। ठीक है, इधर भगवान बोल रहे हैं कैसे करना है ये जो निष्काम कर्म है, वो भी इसमें समझेंगे अभी। निष्काम कर्म को भगवद अर्पण भावन से करना है, समझ रहे हैं ना? कृष्ण को अर्पण करने से करना है। कैसे उसको बोलते हैं? निष्काम भगवत भक्ति योग, मतलब निष्काम भगवत अर्पित निष्काम कर्म योग बोलते हैं। वही दैव वर्णाश्रम बोलते हैं उसको। हम वर्णाश्रम जो फॉलो करते हैं उसको भगवान जो सेंटर में रहते हैं, घर घर का सेंटर भगवान है, हम नहीं है। घर का सेंटर भगवान है, वैसे सोच के सब काम करते हैं। अच्छा काम ही है। काम कैसे करना है अभी डिस्कशन हुआ है। इसलिए भगवद अर्पित निष्काम कर्म योग कैसे करेंगे इसमें है। कैसे करेंगे? योग का क्या योग है, शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं। योग मतलब क्या है? योग और भोग में क्या अंतर है? भोग मतलब क्या है? भोग मतलब क्या है? भोग मतलब इंद्रिय तृप्ति बोलते थे, इंद्रिय तृप्ति करना। हमारा जो इंद्रिय को तृप्त देना ही भोग है। चैतन्य चरितामृत में लिखा है, हमारा जो शरीर और मन को तृप्त देने के लिए कोशिश करते हैं उसको काम बोलते हैं। आत्मेंद्रिय तृप्ति को काम बोलते हैं। कृष्णेंद्रिय, कृष्ण भगवान कृष्ण का जो इंद्रिय तृप्ति करने के लिए हम कोशिश करते हैं हमारा इंद्रिय से, उसको प्रेम बोलते हैं। प्रेम जगाने के लिए हमारा ज्ञान होना चाहिए, भगवान की तरफ प्रेम जगाने के लिए। भगवान को जो तरफ प्रेम बढ़ता है, सब योनि के लिए हमारा प्रेम बढ़ता है, सबके लिए। when love towards Lord develops, then love for everyone develops. Everyone develops. So we no need to hanker for love. We love every living entity, living and non-living also. We don't worry at all. So this is what bhoga means. इसलिए पहले जो 2 श्लोक और 4 श्लोक से पहले क्या लिखा है? भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम, याद है? भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम अपहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समादव न विधीयते। किसको जो मन है बाहर है, अंदर अंदर भगवान है, बाहर प्रकृति है, ठीक है, मन बाहर विचलित हो रहा है, इधर उधर घूम रहा है, क्या होता है? व्यवसायत्मिक बुद्धि नहीं होता है। व्यवसायत्मिक मतलब क्या है? फर्म, एक एक वन पॉइंटेड इंटेलिजेंस नहीं होता है। इससे क्या होता है? भक्ति नहीं कर सकते, जप नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। जब करते हैं रिस्ट्रिक्शन से करते, हरे कृष्ण करते हैं, बल्कि मन इधर उधर भागता है। क्योंकि हमारा जो व्यवसाय है, व्यवसाय को कृषि भी बोलते हैं। कृषि को अभी जो हम्म, आपने सुना होगा मल्टी फार्मिंग, हमारा लाइफ ही मल्टी फार्मिंग हो गया, मल्टी फार्मिंग हो गया। एक एग्जाम्पल है, ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन में जाने के वक्त सोचे आपके पास 5 लगेज है, एक नीचे रखा है, एक उधर रखा है, और ऊपर ऊपर रखा है। ईच स्टेप्स मतलब ईच स्टॉप्स, एक एक स्टॉप में आप सोचेंगे किधर रखा है और नहीं। क्योंकि बुद्धि विचलित है, मन किधर जा रहा है, बाहर जा रहा है। इसलिए हम सोचना है, मन को एक पॉइंटेड करने के लिए एक चीज सुनना है, भगवान एक है। कौन है भगवान?
परमोत्तम परम पुरुष है श्री कृष्ण भगवान। प्रूफ क्या है? प्रूफ क्या है? प्रूफ है क्या? हाँ, बोल रहे हैं, प्रूफ है? किधर है बताइए एक प्रूफ। हाँ, हम सबको जानना चाहिए, क्योंकि कोई पूछेंगे आप तिलक लगा रहे हैं, हरे कृष्ण बोल रहे हैं कि जा रहे हैं, क्यों? कृष्ण ही भगवान क्यों है? और कोई नहीं है क्यों भगवान? कृष्ण का नीचे सब कुछ है, ठीक है? कृष्ण ही भगवान है, क्यों? किधर है लिखा है? हाँ, शास्त्र में लिखा है, वेदों में लिखा है, ठीक है? किधर लिखा है? यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र वहितः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै, ऐसे लिखा है। ब्रह्मा, वरुण, लॉर्ड शिवा, एवरीवन इज ग्लोरीफाइंग लॉर्ड कृष्ण with so much of Gana, specified shlokas. They are glorifying श्रीमद् भागवतम, दैवी पुराण, वराह पुराण, सब में देखिए आप ग्लोरिफिकेशन भगवान कृष्ण का ही है। इसलिए शास्त्र में लिखा है हरि ही ओम तत्सत। किधर भी हरह ओम, इंद्रह ओम नहीं लिखा है, हरि ही ओम तत्सत है। वैसे नहीं कि हम गणेश गणेश जी को नहीं मानते हैं, भगवान शिव को नहीं मानते, वैसे नहीं है, बल्कि समझना है कौन है टॉप मोस्ट, कौन है टॉप। एक बात है, एक बात वेरी इंपॉर्टेंट है, भगवान शिव बोलते हैं कब? हाँ, भगवान का जो पूजा करते हैं, किसका? भगवान कृष्ण का जो पूजा करते हैं, वो सुपर मोस्ट नहीं है, वो सुपर मोस्ट नहीं है। कौन सा सुपर मोस्ट है? उनका परिकर है, उनका पूजा ही श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान किसको चाहिए उसको बड़ा कर सकते हैं। अर्जुन को बड़ा नहीं किया है, पूरा बड़ा किया है अर्जुन। पूरा युद्ध किसने किया है? कृष्ण जी, भगवान कृष्ण ने किया है क्या? किया कृष्ण ही किया है। हम बोल रहे नहीं है अभी, सब युद्ध कृष्ण ने ही किया है, अर्जुन जी नहीं किया है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, निमित्त है अर्जुन जी। भगवान, इसलिए भगवान को चाहिए तो किसी को भगवान कर सकते हैं भगवान कृष्ण। समझ रहे हैं ना कितना कितना डीप साइंस है। इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना है, हम डाइवर्सिटी में नहीं है, हम एक पॉइंटेड है, एक चित्त से भगवान का पूजा करना है, कंफ्यूजन नहीं होना है। सबको मानना है, बल्कि एक ही है हमारा, सबको मानना है, सबको रेस्पेक्ट है, बल्कि एक ही है हमारा, उसको बोलते हैं शुद्ध है। हमारा जो प्यार है भगवान की तरफ शुद्ध है। इसलिए गोपिया गोपिका स्त्री लोग हैं, उनको हम बहुत मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि उनका जो भक्ति भगवान की तरफ बहुत डीप है। इसलिए शास्त्र में लिखा है आराध्यो भगवान व्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिद उपासना व्रजवधु। व्रजवधु कौन है? गोपा और गोपीस है। उनका जो भगवान की तरफ जो प्यार है, एक बार बुखार हुआ था भगवान को, मिट्टी लेने के लिए नारद जी बोले हैं, किधर से? व्रज से। इमीडिएट उनका पैर से, गोपियों लोग उनका पैर से दिया, हाँ धूल से दिया। हम करेंगे क्या? नहीं करेंगे, हम सोचेंगे नहीं नहीं नहीं, वो था प्यार उनका, उतना प्यार सर। सो इसलिए हम सोचना है योग मतलब वो ही है, योग योजना, योजना मतलब जुटना, जुड़ना। इसलिए किनसे जुड़ना है? परमात्मा से। परमात्मा कौन है? भगवान का जो एनर्जी है, भगवान ही इधर आ रहे हैं, संपूर्ण भगवान नहीं है। ओके, पार्शियल मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। पार्शियल मतलब क्या है? हाँ, व्हाट इज इट? हाँ, पाक्षिक का विस्तार विस्तार बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तीन तीन है, ब्रह्मा नहीं, विष्णु नहीं है, ब्रह्मन बोल रहे हो, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान, भगवान ही कृष्ण है। रेफरेंस है श्रीमद् भागवत में है, वो ही भगवान है। एते चांश कला पुंसाः कृष्ण भगवान स्वयं। स्वयं, स्वयं मतलब क्या है? ओनली कृष्ण, स्वयं, स्वयं वही है, कोई अलग भगवान नहीं हो सकते हैं, किधर भी नहीं हो सकते। इसलिए योग, इसको हम पूरा समझ के क्या करना है, हमको हम
स्थापित करना है। स्थापित मतलब क्या है? स्थापित मतलब क्या है? प्रतिष्ठा। जो इधर जगन्नाथ जी का मंदिर है, हम देखे हैं आगरा में, शेषाद्रिपुरम में भी। उधर जो डीटीज है स्थापन किया हुआ है, उसको स्थापन बोलते हैं। जनरली किसी स्थापित किया हुआ डीटी को नहीं लेते हैं बाहर, बल्कि जगन्नाथपुरी में और हमारा जगन्नाथ मंदिर में उत्सव मूर्ति नहीं है, ये मूर्ति जाता है एक साल में एक बार जगन्नाथ रथ यात्रा में। इसलिए योग स्पिरिचुअल माइंडसेट से हम क्या करना है? काम करना है, कर्म करना है। कैसे करना है? संगम त्यक्त्वा धनंजय। कैसे करना है? अटैचमेंट छोड़ के, अटैचमेंट छोड़ के करना है। कैसे अटैचमेंट छोड़ सकते हैं? नेक्स्ट है सिद्धि असिद्धि, सिद्धि सिद्धियों समोभूत्वा। ये समझेंगे हम, सिद्धि और असिद्धि को कैसे समभाव से ले सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, हाउ कैन वी टेक इट इन इक्विनोमियस मैनर। आप कभी भी, हाँ, फीडर बस बोलते हैं ना इधर, फीडर बस, कोई फीडर बस में गए हैं? हाँ, कंडक्टर कैसे है? कंडक्टर और ड्राइवर, कोई ड्राइवर है, मैं नहीं गया हूँ इसलिए मुझे पता नहीं, फिर भी हाँ, कंडक्टर होता है, ठीक है। कैसे रहते हैं कंडक्टर? बिंदास, बिंदास ना, बिंदास रहते हैं, स्ट्रेस नहीं लेते हैं। दो चढ़ो, 10 चढ़ो, कोई बात, बिंदास। क्योंकि क्यों? क्योंकि उनका सैलरी फिक्स्ड है, उनका सैलरी फिक्स्ड है। कौन दे रहा है? गवर्नमेंट दे रहे हैं। बल्कि सेम हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, हमारा सैलरी फिक्स्ड है, भगवान दे रहे हैं, भगवान ही हमारा, हाँ, गवर्नमेंट है। वैसे सोच के काम किया तो क्या होता है? संग नहीं होता है, वो सब काम से हम डिस्टर्ब नहीं होते, अच्छा हो बुरा हो नहीं होता है। इसलिए आध्यात्मिक में और भौतिक में दोनों में ये अप्लाई करना है। कुछ दिन 10 लोग आते हैं, कुछ लोग फिफ्थ मतलब 100 आते हैं, सोचिए प्रोग्राम में। हम चिंता नहीं करते, भगवान किसी को भेजते हैं, आएंगे ही आएंगे। हम हमारा जो ताकत से कोई नहीं आएंगे, प्रभुपाद जी भगवान जी से ही आ रहे हैं, और सब कुछ हो रहा है। इसलिए इसको वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है, सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा समत्वम योग मुच्यते। श्रील प्रभुपाद जी का बहुत अच्छा लेक्चर है इसमें, आप सुनिएगा, और बहुत अच्छा लेक्चर है। और इसमें और एक चीज बोलते हैं, और एक एग्जाम्पल है। आप सोचिए, एक डंडा से आप सांप को मार रहे हैं, ठीक है? आप एक डंडा से, श्रील प्रभुपाद जी ये जो एग्जांपल दे रहे हैं उस उनमें, मतलब व्हाट दैट लेक्चर में, कुछ इन दैट लेक्चर, एक डंडा से स्नेक को मार रहे हैं आप मार रहे हैं और डंडा मार रहा है। बचपन में तो वैसे सोच रहे थे, अभी थोड़ा टकरार मार गया, गिर गए, पिता और माता के, शी और ही विल टच एंड ईट दैट स्टोन। ओह ऐसे किया है स्टोन ने, देन शी विल स्टॉप क्राइंग। वैसा होता है ना, आपने किया है शायद, किया है ना, डंडा मारेंगे आप। बल्कि बाद में सोचेंगे, आफ्टर बिकमिंग ओल्ड एल्डर, नॉट ओल्ड, आफ्टर वी ग्रो अप व्हाट विल अंडरस्टैंड, सिंपली चीटेड। सो फुल लाइफ वी आर चीटेड लाइक दिस नाउ। फुल लाइफ ये बॉडी के लिए काम करके भगवान नहीं बोल के हम क्या कर रहे हैं? पिता को फुल, मतलब वी आर फॉरगेटिंग आवर लॉर्ड। वेरी वेरी सैड सिचुएशन ऑल ऑफ अस आर गोइंग थ्रू। इसलिए हाँ, हम डंडा बनना है, सिर्फ भगवान का हाथ में डंडा बनना है। इसलिए शास्त्र में स्पेसिफिकली आचार्य लोग बात बोलते हैं, हाँ, जो सरेंडर भाव है, सरेंडर भाव है, शरणागति बोलते हैं इसको, शरणागति। बहुत अच्छा श्लोक, श्लोक नहीं, गाना भक्ति विनोद ठाकुर जी महाशय ने लिखा है। कौन है भक्ति विनोद ठाकुर जी? किसी को आइडिया है? ठीक है, हम गुरु प्रणाली से जाएंगे। हमारा जो गुरु का गुरु है, उनका नाम है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनका गुरु है, उनका गुरु है गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, ठीक है?
बाद में देख सकते हैं हम। उनका गुरु नहीं है, मतलब हाँ, शिक्षा प्रणाली है ये, ठीक है, शिक्षा प्रणाली है। और भक्ति सिद्धांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी का जो पिता है, उनका नाम है भक्ति विनोद ठाकुर महाराज। बहुत बड़ा सेवा है उनका, क्योंकि उनका वजह से वो ये सिस्टम हो रहा है। बहुत टेम्पल्स किया है, बहुत बुक्स पब्लिश किया है, बहुत कुछ किया है। प्रभुपाद जी बहुत फॉलो करते हैं उनको, प्रभुपाद जी, ठीक है। उन्होंने क्या लिखा है, दैन्य आत्मनिवेदन गोप्तृत्व वर्ण, इसके बारे में बहुत अच्छा श्लोक लिखा है उन्होंने। इसलिए शरणागति है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सी चीज है। हम ये जो शरणागति को फॉलो करेंगे तो क्या होता है, धीरे धीरे से हमारा जो श्रद्धा भगवान की तरफ बढ़ता है। क्या है शरणागति? षड छह छह षट अंग है, षडंग है, षडंग किसी को याद है? हाँ, शरणागति किसी को याद है? कोशिश कीजिए। नहीं, अनुकूलता, आनुकूल्यस्य संकल्पः, प्रातिकूल्यस्य वर्जिनम वर्जनम, ठीक है, हम समझेंगे, थोड़ा टाइम हो रहा है। आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम रक्षिष्यति इति विश्वासः गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरण, ठीक है। एक एक समझेंगे धीरे धीरे से। हाँ हाँ, 6 टाइप्स। आनुकूल्य, अनुकूलता मतलब क्या है? फेवरेबल। संकल्प, उसमें पूरा संकल्प लेना है। क्या अनुकूल है? मेरा जो भगवान का तरफ जो भक्ति प्रेम बढ़ने के लिए, गुरु के तरफ वैष्णव के तरफ जो प्रेम बढ़ने के लिए क्या चीज चाहिए, वो ही करूंगा। इसके लिए क्या बोलते हैं? अनुकूल्य से संकल्प बोलते हैं। कोई और चीज नहीं, भगवान और भक्त का जो तरफ प्रेम बढ़ने के लिए और एसोसिएशन बढ़ने के लिए क्या कर्म करना है, उसको बोलते हैं अनुकूल्य से संकल्प। प्रातिकूल्य से वर्जनम, वर्जनम मतलब क्या है? छोड़ना, रिजेक्ट कर, ठीक है। किसको रिजेक्ट करना है? प्रतिकूल। क्या क्या प्रतिकूल चीज है? अनफेवरेबल क्या है? एक दो एग्जांपल दीजिए हमारा लाइफ में भगवान के तरफ नहीं लेके जाता है, वो क्या है? बीमारी तो आएगा, टीवी देखना, ठीक है, जल्दी जल्दी टीवी देखना। हाँ, नॉन वेज, और संडे 4 बजे मूवी जाना, और जल्दी बहुत है ना, एक दो नहीं। बैड एसोसिएशन, ठीक है, जल्दी 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 प्रभु जी लोग बोल सकते हैं। हाँ, क्या क्या? हाँ, बहुत जल्दी उठना, 9 बजे। कोई बोल, मैं नहीं बोल। कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। एसोसिएशन विद नॉन डिवोटीज, तो हम करना ही है ना, ठीक है। नास्तिक लोग से संपर्क में रखना। हाँ, देखिए क्या करना है, हम एसोसिएशन देना है, उनका एसोसिएशन नहीं लेना है। उनका एसोसिएशन मतलब चैतन्य चरितामृत में लिखा है, विषयीर अन्न खाइले रुष्ट है मन। विषयी मतलब कौन है? भोग, भोग के पीछे कौन दौड़ता है? दौड़ता है, करेक्ट। भोग के पीछे कौन दौड़ता है? उनका जो, उनके साथ हाँ मिलन जुलन करके उनका जो खाना खाते हैं, उससे क्या होता है? भक्ति डूब जाता है, कुछ भी नहीं कर सकते। 2-3 दिन धीरे 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 टेस्ट नहीं, बाद में उनके साथ साथ सिगरेट, मूवी, सब कुछ चलेगा। बहुत बहुत डेंजरस है। इतना ट्राई करके करके भक्ति मिला है, इतना इजी काम नहीं है। हमको जो भक्ति मिला है, हमारा ताकत से नहीं मिला है, शुद्ध वैष्णव लोगों का संग से मिला है। इस जन्म में पता नहीं किस जन्म में किया है, वैष्णव लोग का संग है। भक्ति के लिए किसका संग करना है? भक्तों का। भक्तों का संग से ही भक्ति मिलता है, नहीं मिलेगा अदरवाइज इट विल नॉट कम। अभी जो एक मेरा एक फ्रेंड ने, दोस्त ने बताया था,
एक शिला प्रभुपाद का डिसाइपल ने बताया था, मैं शायद मैं शायद कब प्रभुपाद थे उस वक़्त शायद मैं एक श्वान था। श्वान डॉग क्या बोलते हैं? कुत्ता। मैं एक कुत्ता था, इसलिए जो प्रभुपाद इधर-उधर जा रहे थे, मैं भौं-भौं कर रहा। बट एट लीस्ट उनको देखा मैंने, उनका चरण जो धूलि है उसका स्पर्श हो गया। जो चरण का धूलि स्पर्श है वो भी वैष्णव संघ है। इतना है कि सुनना है। इसलिए कभी भी बड़ा-बड़ा जो वैष्णव आते हैं, पहले भी हमारा जो ओल्ड जनरेशन में क्या करते थे, साधु लोगों को अंदर बोलते थे। साधु अंदर आ जाइए। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे। इसलिए हाँ, हाँ। इसलिए इसलिए हम बहुत 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 जोर से बोलना है हरे कृष्णा। इससे क्या होता है, सबको सुनाई देता है। और जो वैष्णव है, हम सब वैष्णव बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वैष्णव नहीं बने हैं, बल्कि कोशिश कर रहे हैं ना सब लोग। क्या होता है, हमारा जो चैंटिंग से हमको पावर मिलता है, इसलिए हम किसी को नहीं डांटना है। सिंपली किसी को सिंपली नहीं डांटना है। उतना प्रॉब्लम दिया है, ठीक है, सिंपली फाइटिंग नहीं करना है, डांटना है नहीं। क्यों? क्यों? No, we are not giving any mercy. We are not passing the mercy of Lord. जो mercy को क्या कहते हैं, दया, जो भगवान का जो प्रेम है उसको नहीं बैठ रहे हैं, वो दूर जाएंगे भगवान से। फिर तिलक लगा के डांट रहे, वो क्या कर रहे हैं, भक्त वैसे कर कृष्णा बोलेंगे। इसलिए हम वैसे नहीं करना है। इसलिए हम सब क्या सोच रहे हैं, कैसा कर्म करना है, समभाव से कैसे लेना है कर्म को, ये देखना है। ठीक है, इधर एक चीज मैंने नहीं किया है, वो डिस्कस करेंगे वर्णाश्रम धर्म के बारे में। ठीक है, उसके बाद में हम आज का क्लास स्टॉप करेंगे। इधर जो लिखा है विष्णु पुराण से, बहुत अच्छा श्लोक है। हम सब सोच रहे हैं वर्णाश्रम हम सब फॉलो कर रहे हैं, सब कर रहे हैं ना? कर रहे हैं, सोच रहे हैं हम कर रहे हैं। वर्णाश्रम में दो तरीके हैं, दो तरीके हैं। एक भगवान को नहीं मानते, वर्णाश्रम मानते हैं, भगवान को नहीं मानते। भगवान सेंटर नहीं है। हम सब जो इस्कॉन में है, हम सब जो भक्ति के चढ़ने के लिए वर्णाश्रम अगत्य है, वो फॉलो कर रहे हैं, हम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसलिए भगवद अर्पित निष्काम कर्म योग को दैव वर्णाश्रम बोलते हैं। समझ रहे हैं आप? भगवद अर्पित निष्काम कर्म को दैव वर्णाश्रम, क्योंकि भगवान में सेंटर में है, भगवान सेंटर में है, और सब भगवान का भक्त है सोच के। घर पे आपने बोला है ना, आपने जो प्रश्न पूछा है, भगवान को पूजा करने के लिए नहीं छोड़ते हैं। हम क्या सोच करना है, ये सब भगवान का भक्त ही है। माता जी प्लीज सिट डाउन। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, राधे राधे। सो इसलिए हम क्या सोचना है, हमारा घर पे कोई है, वो सब भक्त है, वैसे सोच के काम। भक्त नहीं है पता है, बल्कि एक या दूसरे दिन में वो भक्त बनेंगे, क्योंकि हम उस घर पे हैं। भगवान का नाम हम बोल रहे हैं उधर, हरे कृष्ण नाम का जाप कर रहे हैं। हम स्ट्रांग नहीं है, जप स्ट्रांग है। जो जिह्वा से, जो जीभ से हम हरे कृष्ण नाम बोल रहे हैं, वो एक स्मॉल चीज नहीं है। क्या बोल रहे हैं, राजते सकलोपरि, हरे नाम केवलम। राजते सकलोपरि मतलब क्या है, ये जो भगवान का जो नाम है, वो भगवान ही है। देर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्णा एंड कृष्णा's नेम। Nama and Nami, there is no difference. So even though I am not pure, but names are pure, when I chant Hare Krishna Maha Mantra in my home, if other my family members are not devotees, imagine, then also they will become devotee one or the other day.
because name is very strong. With knowing, without knowing, taking name of Lord itself is giving benefit. Now, maybe some small insects are there, they also will get benefit by chanting Hare Krishna Mahamantra. So we have to be very serious, not to offend, not to fight with anyone as much as possible, but lovingly, caringly chant nicely uh, in our daily basis as much as possible, because chanting is called as Angi. Angi means what? Anga means limb. Anga. Angi means what? Shirt. Shirt. Angi. Yeah, one of the meaning. फॉर एग्जाम्पल इसमें षडंग बोलते हैं ना, इसलिए अंग है। ठीक है, अंगी मतलब जो भगवान को जो पास में जाने के लिए स्पेसिफिकली इस युग में अंगी कौन सा है? नाम जप है। अंगी मतलब क्या है? उससे सब कुछ आता है, उसको ही कनेक्ट होता है। अभी अर्चना करो, अंगी को कनेक्ट होता है। सेवा करो, अंगी को कनेक्ट होता है। अंगी मतलब हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो निरंतर करना है हरे कृष्ण महामंत्र का जाप। किसने दिया है हरे कृष्ण महामंत्र? हरि वो चैतन्य महाप्रभु। आज आज स्पेशल डे है, आपको याद हो, मतलब आपको बताएंगे क्या स्पेशल डे है, प्रभु जी बताएंगे। उससे पहले थोड़ा थोड़ा 2 मिनट के लिए हम कौन है चैतन्य महाप्रभु और कौन है पंच तत्व। पंच तत्व मतलब क्या है? तत्व मतलब क्या है? तत्व मतलब फिलॉसफी है। में हमने डिस्कशन किया है अभी, बिना तत्व से हमको कृष्ण का बारे में भक्ति आ, स्थिर नहीं स्थिर नहीं स्थिर 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 समझ रहे हैं ना? डीप नहीं होगा, योगस्थः नहीं होगा। इसलिए हम क्या करना है? शिक्षा लेना है। वो शिक्षा देने के लिए पांच लोग का मैनिफेस्टेशन हुआ है। 5 लोग, ठीक है। एक कृष्ण ही है, दूसरा भी कृष्ण ही है, बलराम जी। ओके, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, ठीक है। अद्वैत, कौन है अद्वैत? ऐसे नहीं, हाँ बलराम तो नित्यानंद है। वेरी नाइस, अच्छा है। हाँ हाँ, लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड विष्णु, उनकी वजह से कौन आया है? हाँ, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद। चैतन्य महाप्रभु स्पेसिफिकली का आविर्भाव मतलब उधर से उतर के आए हैं। कैसे आए हैं? प्रेम भाव से आए हैं। कैसे आए हैं? भक्त बन के आए हैं। उसको बोलते हैं छन्न रूप। छन्न, छन्न मतलब क्या है? नहीं दिखाया है, मैं भगवान जैसे नहीं दिखाया है। वैसे ही भगवान भगवान शंकर भी आए हैं। कैसे आए हैं? भगवान शंकर भी छन्न रूप से आए हैं। कौन है वो? शंकराचार्य। किधर लिखा है? मायावादम असत शास्त्रम। शॉक लग रहा है, क्या है? असत शास्त्र भगवान शंकर बोलते हैं, मतलब भगवान शंकर पार्वती देवी को बोलते हैं मायावाद है। मैंने मैं आके ही बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? सब कुछ जो बौद्ध फिलॉसफी और मायावाद फिलॉसफी डिफरेंस ही नहीं है, सेम है बोल रहे हैं। क्यों? अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सरकमफरेंस। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो स्मॉल चाइल्ड है उसको बोलेंगे क्या? आप डीप नॉलेज कुछ बताएंगे क्या? डीप नॉलेज नहीं, पेरिफेरल नॉलेज। पेरिफेरल मतलब ऊपर का। अभी शास्त्र का डीप नॉलेज उनको नहीं बताएंगे। वैसे ही अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सर्कमस्टेंसेस, डिपेंडिंग ऑन द इंटेलिजेंस ऑफ ए पर्सन, लॉर्ड कम्स डिपेंडिंग ऑन द पर्सन। अकॉर्डिंग टू पात्र, पात्र मतलब क्या है? हम सब हम सब एक एक बार टिफिन बॉक्स लेके आते हैं ना, प्रसाद थोड़ा बचा, हम सब लेके आना है, वैसे नहीं कि नहीं लेके आना है, लेके आते हैं ना थोड़ा प्रसाद लेके जाने के लिए। तो क्या बोलते? पात्र। हमारा कितना पात्र है उतना ही प्रसाद रहेगा। अगर एक एक बार प्रसाद भी नहीं होगा ज्यादा, फिर भी सोचिए प्रसाद बहुत है और हमारा पात्र छोटा है,
इसलिए एक-एक युग में कितना-कितना पात्रत्व है, उसके अनुसार भगवान आते हैं। ठीक है? चैतन्य महाप्रभु का पूरा मैनिफेस्टेशन के कृष्ण है, कृष्ण ही है। उनका जो मैनिफेस्टेशन का 10,000 ईयर्स इफेक्ट रहेगा। अभी कितना ईयर्स हो गया चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव होके? 500 प्लस। ओके, 500 प्लस। और कितना साल है? 9,500 ईयर्स है। 9,500। इसके अंदर कितना बार जन्म मृत्यु होगा हमारा पता नहीं। उससे बाद जन्म मृत्यु हो गया डेंजरस। ठीक है? इसके पहले जन्म मृत्यु होके भगवत धाम चलना है। इसलिए हम बहुत सीरियस बनना है। इस लाइफ में भी कोशिश करना है। इस लाइफ में हम कोशिश करना है। इसके लिए सिर्फ संडे को 4 बजे मूवी नहीं जाना है, इधर आना है। और क्या करना है? और 4 महीना आज से नहीं तो पूर्णिमा से शुरू होता है। आप सबने देखा है व्हाट्सएप मैसेज में प्रभु जी ने चातुर्मास चातुर्मास में बहुत सेवा करना। और भागवत नहीं है तो भागवतम पढ़ना है। भागवत नहीं है तो परचेस मतलब ले सकते हैं। चातुर्मास में भागवतम खरीदने से क्या होता है? क्या होता है? 10,000 रुपीस विल बिकम नो देहात्म बुद्धि उसको बोलते हैं। 10,000 रुपीस विल कन्वर्ट इनटू कृष्ण कॉन्शियसनेस। नहीं तो धन दे के भगवान को नहीं परचेस नहीं कर सकते हैं। धन धन दे के भगवान को नहीं पढ़ सकते, बल्कि धन को भगवान का सेवा में लगाने से भगवान हमारा अधीन हो जाता है। क्यों अधीन जाता है? भगवतम घर पे आता है। भगवान घर पे आते हैं और उससे क्या होता है? भगवान डेली मर्सी देते हैं। हम एक-एक बार बुक को ऐसे-ऐसे करके देखते हैं, थोड़ा-थोड़ा अंदर जाते हैं। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवत गीता घर पे रखना है। प्रभु जी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप। हाँ, आप कोशिश कीजिए। छोटा पैसा है, बड़ा नहीं है। हाँ, नहीं 10,000 भी छोटा है भगवान का। 1,00,000 दे सकते हैं बल्कि मैंने एक मैंने एक इंसिडेंट सुना है, लास्ट है, खत्म करेंगे। एक इंसिडेंस आज ही सुना है। मेरा एक फ्रेंड बोल सकते हैं, उनका जो रिलेटिव है फॉरेन में है। फॉरेन में है, उनको हेल्थ अच्छा नहीं है। उधर का डॉक्टर बोल रहे हैं इतना ही ट्रीटमेंट दे सकते हैं। बल्कि इंडिया का डॉक्टर बोल रहे हैं हम कुछ बेटर कर सकते हैं, लेके आओ। और उधर नो ऑब्जेक्शन लेटर लेना है और फ्लाइट में आना है, वो नहीं दे रहे हैं। और उन्होंने क्या किया? फ्लाइट में आने के लिए 75 लाख देना पड़ता है। 75 लाख किसके लिए? परमिशन के लिए और आने के लिए। सोचिए, 75 लाख टू कीप दिस बॉडी। और भगवान को बुलाने के लिए 10,000 हम सोचेंगे। 10,000 नहीं है किसी के बाद। If someone doesn't have, that is okay. For that also ISKCON has a great thing. इंस्टॉलमेंट में भी वो ठीक है, ठीक है। सो हाँ, चैतन्य महाप्रभु कलयुग को क्या-क्या चाहिए सब श्रील प्रभुपाद ने दिया है। हम उसको टैप करना है। टैप मतलब क्या है? टक टक करना है, बस इतना है। आना है, एसोसिएशन करना है, धीरे-धीरे से हो जाएगा। धीरे-धीरे से सब कुछ हो जाएगा। सो चैतन्य महाप्रभु हो गया, नित्यानंद प्रभु हो गया, अद्वैत आचार्य हो गया, उसके बाद श्रीवास कौन है? नारद मुनि है। नारद मुनि कौन है? Son of Brahma. Okay. And it is more than son of Brahma. He is greatest devotee of Lord Krishna. And not only that, he has written beautiful books called as, that only we refer for our Archana Vidhi, called as नारद पंचरात्र। नारद पंचरात्र, नारद भक्ति सूत्र। भक्ति कैसे करना है भगवान की तरफ, भक्ति सूत्र में भी लिखा है। श्रील प्रभुपाद का हाँ टीका है उसके ऊपर। ठीक है। उसके बाद लास्ट चैतन्य महाप्रभु हो गया, नित्यानंद प्रभु हो गया, अद्वैत आचार्य हो गया, श्रीवास ठाकुर जी हो गया। उसके बाद गदाधर पंडित कौन है? हाँ, चैतन्य महाप्रभु राधा भाव से आए हैं, कृष्ण ही है। और गदाधर जी
राधा रानी है, इसलिए गौर गदाधर बोलते हैं, श्री श्री गौर गदाधर। ठीक है, प्रश्न है, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। We have to be very thankful to Prabhu because he is organizing all these events for all of us to progress in Krishna Bhakti. So let's all take full benefit of this, and as much as possible we support our dear most Prabhu, Murali Prabhu, so that he is here for all of us to dedicate ourselves for progress in Krishna consciousness. Yes, please. प्रश्न है तो आप पूछिएगा। Yes, please. हाँ, what is the difference between nishkama karma? I'll tell bhagavadarpita nishkama karma yoga. Okay, bhagavadarpita nishkama karma yoga with one example, and karma and bhakti yoga. Okay, brahmana patnis, okay, brahmanas in the story were doing, might be doing, I'm not very sure, doing for Lord Vishnu only, and they might be doing nishkama only. But when Lord came, or Lord was singing on through someone, Lord came and said that he want prasadam or whatever, they didn't give. They are able to understand. They were following Daiva Varnashrama, but they have not progressed to Bhakti. Daiva Varnashrama is in the bodily platform, but it is very essential until unless we have desire. I didn't tell, I don't remember the verse. Bhakti Vinod Thakur says, Thakurji says that until unless we have this bodily attachment and so much of desires, we have to stick to Varnashrama Dharma, and that will progress, that will take us higher. That will become, because it is in Sattva-guna. Varnashrama is progress ourselves to Sattva-guna. Bhakti is not Sattva-guna, no. Bhakti is Shuddha Sattva. Shuddha Sattva. That is the main difference. Bhagavad Arpita Nishkama Karma is not Bhakti. It is our karma we are dedicating to Lord Krishna. But it is not topmost. We have to progress to become topmost. For that, it takes time, but we have to hanker for it. Bhakti Yoga, what is Bhakti Yoga? You know it. What is the definition for Bhakti Yoga? Anyone? Rupa Goswami. Serving Lord for his pleasure. Rishiketa, Rishikesha Sevana. One more thing. Very important verse from Rupa Goswami, Sri Rupa Goswami's. Yes, yes. अन्य अभिलाषिता शून्यम. भगवान को सिर्फ भगवान का अभिलाषी ही मेरा अभिलाष है, बाकी सब कुछ अभिलाष मेरा नहीं है. कर्मयोग में वो नहीं होता है, काम करना पड़ता है. ठीक है. अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम. ज्ञान और कर्म जो है उसमें, whatever jnana karma is there in that is called anavrita, not shunya. Anavrita jnana karma means what? Whatever required for bhakti, that jnana and karma I did. For example, coming and doing some activity for Bhagavan, that is also karma because we have this body. In spiritual world, it is not karma, but here it is karma because we have this body. But that karma is not enveloping our bhakti. It is not covering our bhakti. Jnana karma anavritam anukulyena, same anukulya, not like Putana. Putana's bhakti is pratikula, not anukula. Okay? Not like that. Anukulyena, Krishna, anushilanam. Shilanam means what? Shilanam means serving always. Anu means always. Always serving Krishna. 24/7. That should be our motive, our thinking. Okay. Anyone else? Any question? If no question, we'll stop. I hope I made some sense because my language is not good, even Hindi or English, any language. So please forgive me for language and whatever error which might have happened. So whatever error I might have done now, please forgive. थोड़ा संभालना पड़ेगा, थोड़ा संभालना पड़ेगा. आप बोल रहे ठीक है, ठीक है.
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की नित्य गौर प्रेमानंदे। ओ ये है मोटर, ये है मोटर। ये है, ये है,